Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Leo Ascendant and how the month of December 22 is going to pan out for the Leo Ascendant people. We will start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Sun is going to transition through the 4th house till 16th of December, which would mean in the first half of December, the Leo Ascendant people are going to get mental peace as well as happiness on the domestic front. And from 16th of December to the month end, Sun will be navigating through the 5th house. So focus will shift to using your intellect to learn new things, earn wealth, as well as towards the welfare and intellectual growth of your kids. Both the fourth as well as the fifth house are related to family because fourth house indicates the domestic harmony and fifth house indicates kids. So if you are a family oriented person, then this is going to be a extremely good month for the Leo ascendant people as far as the family enjoyment is concerned. These three planets, Sun, Venus, and Mercury, are going to be forming a stellium in the fifth house in the month of December, and they will also be aspected by Mars through the eighth aspect. The energies of the fifth house are going to be extremely strong in the month of December. Any kind of activity that you do related to fifth house is going to bring a lot of positive results. We will discuss this in detail in the later half of the video. First, we will look at Venus. Venus is the lord of third house of efforts and courage, as well as the 10th house of profession for Leo ascendant people. And this planet is going to pass through the fifth house. So people who are in jobs will face headwinds during this month. This position of 10th house lord in the fifth house always creates trouble for those who are in service. But if you are an artist, fashion designer, or speculator, then this month will turn out to be very favorable for you because these professions will be utilizing the signification of Venus or the fifth house. Mercury is also going to be posited in the fifth house where it is going to see a conjunction with both Venus and Sun during the month. Mercury is an important planet for the Leo ascendant because it owns both the wealth generating houses, second as well as the 11th house lord. So, this placement is providing an opportunity for you to earn through speculation and providing a chance to build your knowledge in your concerned domain area in December. This month is also providing an opportunity to earn through trading, brokerage, or commission related work. Saturn is now posited in the sixth house, and this Saturn will demand continuous hard work from you if you are in service or business because both the houses are owned by Saturn. Good part is Saturn is going to move in the Aquarius sign in the month of January, and people who are facing hurdles in the job related aspect will start to get a breather. I have covered the Aquarius movement of Saturn in a separate video, and you can watch the same to see how Saturn will produce results for you when it moves to Aquarius. We will also look at Mars. Mars is a first rated benefic for Leo ascendant people because it owns one quadrant, which is the fourth house, and one trine, the ninth house. So, in the month of December, this transit of Mars through your house of profession will benefit you if you are in a career that is related to Mars. So people who are in the professions related to property, specialty chemicals or petrochemicals, then this Mars will continue to support them in their profession. If you are also related by any way to defense or police jobs, then also this will be a favorable month. Leo ascendant people have all the fixed signs in the quadrant and they face biggest issues in changing job compared to other fixed sign ascendants because Taurus ascendant person wants to enjoy their life, a Scorpion ascendant person is always interested in politics, and Aquarius ascendant person always have an intellectual outlook towards work. But people of Leo ascendant they want people to respect them and they want to take lead or charge. So when they go to a new place, they want to take command, and this always creates issues with the existing hierarchy. And that is why you should always look for long stints in any organization and you should avoid changing your job suddenly. Now, there are also certain dates when you need to be very cautious. These are the dates when moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So, for you, the dates to remain cautious in the month of December are 2nd and 3rd of December, 11th and 12th of December, 25th and 26th of December,
and 29th and 30th of December. So just avoid taking any key decisions during this time frame. If you look overall, the month of December is going to be quite fruitful for you because the ascendant lord passing through the fourth and fifth house will make sure that you will get all the happiness that is related to family. And if you are a family oriented person, then this month will turn out to be extremely good for you. So that's the summary for you for this month. If you have liked my video, please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि सिंह लग्न वालों के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग लग्नेश को देखते हैं। देखिए, लग्नेश सूर्य 16 दिसंबर तक चतुर्थ भाव से भ्रमण करते रहेंगे, तो लग्नेश का चतुर्थ भाव से भ्रमण करना हमेशा अच्छा कहलाता है। यहाँ पर जो अच्छी बात होगी वो ये है कि ना सिर्फ लग्नेश चतुर्थ भाव से गुजरेंगे 16 दिसंबर तक, लेकिन उन पर गुरु की भी नवी दृष्टि होगी। तो पहले 15-16 दिन तक आपको मानसिक शांति का अनुभव करने को मिलेगा दिसंबर के महीने में, और आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में यानी आपके घर पे बहुत सुख शांति छाई रहेगी। 16 दिसंबर के बाद सूर्य पंचम भाव से भ्रमण करेंगे, जहाँ पे ये शुक्र और बुध के साथ तिगड्डे का निर्माण करेंगे। यहाँ पर लग्नेश चूंकि पंचम भाव से गुजर रहे हैं, तो आपको मौका मिलेगा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ नई चीजें सीखने का। इसके अलावा पंचम भाव से आपकी संतति भी देखी जाती है, तो आप यहाँ पर अपने बच्चों की ग्रोथ भी देख पाएंगे दिसंबर के महीने में। क्योंकि बुध भी यहाँ लोकेटेड है और द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में बैठा है, तो आपको अपने परिवार से भी धन की प्राप्ति होगी, या फिर आपको अगर आप स्पेक्यूलेशन में इन्वॉल्व हैं तो उससे भी आप इस महीने में पैसे कमा पाएंगे। पूरे महीने में चूंकि लग्नेश चतुर्थ और पंचम भाव से भ्रमण करता रहेगा, तो जितने भी लोग फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, अपनी फैमिली से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा साबित होगा। शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी बनते हैं और ये भी पंचम भाव से भ्रमण करेंगे दिसंबर में। तो जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए इस महीने में थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि जब भी दशम का स्वामी पंचम से गुजरता है तो वो दशम से भी अष्टम कहलाता है, जो कि दूस्थान हो जाता है, और छठवें जो कि सर्विस का जॉब है उससे भी वो 12वां होता है, तो जिसे हम डबल वैमी बोलते हैं अंग्रेजी में, वो हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं उनके लिए ये महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा। लेकिन अगर आप पंचम भाव से जुड़ा हुआ ही नौकरी में हैं या व्यवसाय में, यानी आप कोई भी कलाकार हैं या आप शुक्र से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं, फैशन डिजाइनर हैं या व्हीकल्स में डील करते हैं, या फिर आप सट्टेबाजी से जुड़े हुए हैं व्यवसाय के तौर पे, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। अगर आप शिक्षा से संबंध रखते हैं तो भी इस महीने में काफ़ी आपको अच्छा तरक्की देखने को मिलेगी, और इन सारे प्रोफेशन से आपको पैसा कमाने के भी मौके मिलेंगे दिसंबर में। तो अगर आप शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय करते हैं या फिर आप पंचम भाव से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा निकलेगा, प्रोफेशनल प्रोग्रेस के लिए भी और पैसे के लिहाज से भी। बुध भी पंचम भाव में ही बैठे रहेंगे और यहाँ पर शुक्र और सूर्य के साथ इनकी युति भी बनेगी दिसंबर के महीने में। चूंकि बुध द्वितीय और 11वें भाव के स्वामी हैं सिंह लग्न के लिए, तो दोनों पैसे वाले स्थान के स्वामी का पंचम भाव में बैठना ये बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है। यहाँ पे बैठ के बुध अपने ही घर को भी देखेंगे, 11वें भाव को, जो कि लाभ स्थान है। तो पैसा कमाने की दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा है, और आपको यहाँ पर अपना एक नॉलेज बिल्ड करने का भी मौका मिल रहा है, तो उस मौके को आप छोड़िएगा मत दिसंबर के महीने में। अगर आप कोई भी कमीशन रिलेटेड काम करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग या ब्रोकरेज से भी जुड़े हुए हैं, तो भी ये महीने में पैसे कमाने के आपको बहुत मौके मिलेंगे। शनि छठवें भाव में ही मौजूद रहेंगे। यहाँ पे बैठा हुआ शनि मंगल के नक्षत्र से भ्रमण करेगा, तो शनि भी आपको कार्यस्थल पे अच्छे परिणाम लाके देगा। शनि हमेशा ये चाहता है कि आप मेहनत करते रहें, और जितने लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितना हार्डवर्क करते हैं, उतना ही शनि अच्छा परिणाम देता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शनि छठवें और सातवें दोनों भावों का स्वामी बनता है, यानी कि नौकरी और व्यवसाय दोनों का ही स्वामी आपके लग्न के लिए शनि बनता है। तो शनि जनवरी 2023 के सेकेंड हाफ में सप्तम भाव में मूव कर जाएंगे, और जितने भी लोग नौकरी में इस समय में कठिनाई महसूस कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हद तक ये एक रिलीफ देने वाला कार्य करेगा। मैंने शनि के मूवमेंट पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि आपके लग्न के लिए शनि का भ्रमण कुंभ राशि से कैसे होगा, वो आप उस वीडियो से समझ पाएंगे।
एक नज़र मंगल पे भी डालते हैं। देखिए मंगल आपके लग्न के लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है। चतुर्थ भाव का और नवम भाव दोनों का स्वामी मंगल बनता है। यहाँ पे बैठ के मंगल, अगर आप मंगल से ही जुड़ा हुआ प्रोफेशन में है, यानी आप पुलिस में हैं, डिफेंस सेक्टर में हैं, या आप किसी भी तरह के पेट्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, फ्यूल्स या फिर प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद वगैरह कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ये मंगल आपको यहाँ पे अच्छा परिणाम देगा जब तक यहाँ बैठा हुआ है। देखिए आपके लग्न के लिए सारी स्थिर राशियां केंद्र स्थान में पड़ती हैं, तो और बाकी भी जितने स्थिर लग्न वाले लोग हैं, जैसे वृषभ लग्न हो गया, उसको अपने कार्यस्थल पे या जीवन में मौज करनी होती है। वृश्चिक लग्न का व्यक्ति होता है वो राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखता है और पर्दे के पीछे से, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग पुल करना, वो करने में उसका ज्यादा रुचि रहती है। कुंभ लग्न के लोगों का जो नौकरी में एक इंटेलेक्चुअल टाइप का अप्रोच रहता है, तो जहां पर भी उनको अपनी दिमाग इस्तेमाल करने का मौका मिले, अपना इंटेलिजेंस दिखाने का मौका मिले, उन नौकरियों में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। यहाँ पे आप लोगों के साथ समस्या ये आती है कि आपको जहाँ पर भी आप जाते हैं, आपको अपने प्रोफेशन में सामने वाले से रिस्पेक्ट चाहिए। अगर लोग आपकी इज्जत नहीं करते तो आप उस नौकरी में ज़्यादा समय तक रहना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपको जब भी आप नई जगह पे जाते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और सोच समझ के आपको अपनी नौकरी बदलनी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपको कमांड लेने की आदत होती है। आप अधिकार चाहते हैं, अपनी एक लीडर की पोजीशन चाहते हैं। तो जहाँ पर भी नई जगह पे आप जाते हैं, उधर जो पहले से एग्जिस्टिंग लीडरशिप या हायरार्की होती है, उसको इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल पसंद में नहीं आता। और कई बार मैंने देखा है कि सिंह लग्न के लोगों को जब वो नौकरी जल्दबाजी में बदल लेते हैं तो उनको फिर उसके ऊपर पश्चाताप होता है, और वो ये सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मैं पिछली नौकरी में ही था। तो जब भी कभी आपको नौकरी बदलनी चाहिए, इन जनरल बहुत सोच समझ के आपको अपना जॉब चेंज करना चाहिए। यहाँ पर दिसंबर में कुछ ऐसे दिन है जब आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये दिन है 2 और 3 दिसंबर, 11 और 12 दिसंबर, 25 और 26 दिसंबर, 29 और 30 दिसंबर। इन दिनों में सावधान रहिए और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आप टालिए। देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिसंबर का महीना, अगर आपका फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच है और आप परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा आपके लिए। और अगर आप स्पेक्यूलेशन से जुड़े हुए हैं या फिर आप एजुकेशन में हैं, आप कला क्षेत्र से जुड़े हैं, फैशन डिजाइनिंग में है, तो भी ये आपके लिए पैसे की दृष्टि से भी बहुत अच्छा समय है। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।